السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ اب آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی، وہ سلائیڈ سیٹ کرتے ہوئے کچھ نیٹ ورک پرابلم تھا، کچھ دیر ہو گئی۔ کیسے ہو آپ لوگ؟ اب آواز آ رہی ہے میری بیٹا؟ اب آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی، یس لکھے۔ مبین میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ فاطمہ ثناء اللہ کو میری آواز آ رہی ہے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا بیٹا، ہم کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ ہاں، میں اپنا کیمرہ آن نہیں کرتی ہوتی، اس لیے کہ جو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، تو مجھے اچھا سا نہیں لگتا، اس لیے میں نے کیمرہ کبھی آن نہیں کیا نا۔ تو بیٹا آج جو ہم پڑھ رہے ہیں کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ، اور کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ جو ہے اس کے ہمارے پاس 5 یونٹ ہیں۔ پہلے بھی میں نے کریکولم میں سے آپ لوگوں کو جو ہے ایکسپلین کیا ہوا ہے، تو بٹ میں دوبارہ یہ بتاتی چلوں کہ آپ کو ہوگی کہ میڈم جو ہے روٹین کی چیزیں ہمیں بتاتی رہتی ہیں، یہ چیزیں تو ہمیں بھی آتی ہیں۔ تو پہلے جو میں نے آپ لوگوں کو جو ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں پروڈکشن پڑھایا تھا، پیوبرٹی، تو پیوبرٹی میں جو ہے ایجز اکارڈنگ ٹو ایجز جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی تھی، تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ تقریباً آپ لوگوں کے جو ہے تیسرا سال سٹارٹ ہو چکا ہے، تھرڈ ایئر، تو آپ لوگوں کو ان چیزوں کا پتا تھا۔ اسی طرح جو امیونٹی بٹ جو ہمارے ٹاپک ریلیٹ کر رہے ہیں، تو وہ تو مجھے پریزنٹ کرنے ہیں نا، تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو آج میں امیونائزیشن پڑھا رہی ہوں وہ بھی آپ لوگوں نے مائکرو بایولوجی میں پڑھا ہوا ہوگا، اس میں موسٹلی چیزیں آپ کو آتی ہیں، بٹ میرے یونٹ میں یہ آ رہا ہے تو اس میں کچھ چیزیں چینج بھی ہوں گی جو آپ لوگوں کو میں ایکسپلین کر دوں گی۔ تو اس میں آپ لوگوں کو جو مشکل لگے گا یا آپ کے لیے جو نیو چیز ہوگی وہ ہمارا یونٹ نمبر 4 ہوگا، ریپروڈکٹیو ہیلتھ، وہ آپ کے لیے بالکل ہی چینج ہوگا۔ اور جتنے یونٹ باقی ملا کے 2 یونٹ ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی آپ کے لیے نیو ہوگا، اور وینرل ڈیزیزز بھی آپ کے لیے نیو ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے جو فیملی پلاننگ کی کچھ چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی، بٹ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نیو آپ کو انٹریکشن ہوگی۔ تو میں یہ چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ میڈم کو پتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں آتی ہیں، کیونکہ امیونائزیشن جو ہے وہ مائکرو بایولوجی میں پورا پڑھا ہوتا ہے اور میرے بچوں کو آتا ہے۔ تو جب آپ یہاں ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے پریزنٹیشن کروا لیتی ہوتی ہوں، تو ساتھ میں ڈسکشن کر لیتی ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو آتا ہے۔ تو ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں یہ کنٹینیو جو ہے آن لائن اسٹڈی آپ لوگوں کو کروانی پڑ رہی ہے، تو اس میں آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا، آپ کی پریزنٹیشن بنتی ہے یا نہیں بنتی، تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو ہمیں بیزی رکھنا ہوتا ہے، تاکہ کل آ کے آپ یہ نہ کہہ دو کہ ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ہماری تو ڈسکشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ تاکہ ہم یہ ویٹ نہ کریں کہ آپ کب آؤ، کب آپ کی پریزنٹیشن لے اور کب یہ سیشن ہمارا سٹارٹ ہو، تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ اتنا ہمارا کور اپ ہو گیا۔ ان سے کو آپ انہوں نے لیکچر سٹارٹ کر لیا، گھنٹے کے بعد وہ آپ کو بھیج دیں گے، نہیں 2 گھنٹے کے بعد میرا لیکچر ختم ہونا۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، اب میں آپ کو جو جا رہی ہوں امیونائزیشن جو ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے، امیونٹی کی ڈیفینیشن: اٹ از دی ڈیفینس میکانزم آف دی باڈی or the reaction of the body toward any substance or non-self. It is also defined as non-susceptibility to the given disease or given organism. یہ immunity کیا ہے؟ immunity is the defense mechanism of the body. ٹھیک ہے، ہمیں ہماری باڈی میں اگر کوئی مائکرو آرگنیزم انٹر ہو جاتا ہے تو اس کے ریئیکشن کے لیے ہماری باڈی کے اندر جو امیون سسٹم موجود ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اندر جانے والے جو مائکرو آرگنیزمس ہیں ان کو انگلف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ڈیزیز نہیں ہونے دیتا، اسی لیے ہماری امیونٹی کہتے ہیں کہ اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوسری ڈیفینیشن میں اٹ از آلسو ڈیفائنڈ ایز نان susceptibility to the given disease or given organisms. given organism جو ہمارے اندر انٹر ہونا ہے وہ جو ہے اس کو susceptibility ہونے ہی نہیں دیتا اگر ہمارا اندر کا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا۔ تو اس میں جو ہے
नेचुरल इम्यूनिटी बताया गया है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल इम्यूनिटी में भी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी होती है। अब जो है नेचुरल इम्यूनिटी में मैटरनल पैसिव इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ naturally acquired passive immunity and refer to the antibody। अब जो मैटरनल पैसिव इम्यूनिटी है वो नेचुरली जो है हमारे इम्यून सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराई जाती है अल्लाह ताला की तरफ से, जो हमारे एंटीबॉडीज होती हैं, और मेडिएटेड इम्यूनिटी कन्वेड टू द फीटस बाय मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो माँ से बच्चे को कन्वर्ट होती है, माँ के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू, तो maternal antibodies are passed through the placenta to the fetus by placental cell और colostrum। अब प्लेसेंटा जो है वो उसके थ्रू से तो बच्चे में फीटस में एंटीबॉडीज आ जाती हैं। जब वो न्यू बॉर्न आता है तो उसको फीटस नहीं, तब उसको बेबी कहा जाता है। जी बेटा, मेरा गला फातिमा बहुत खराब है, तो दुआ करो जल्दी ठीक हो जाए। पूरा हफ्ता हो गया, उसको वॉइस रेस्ट नहीं मिलती ना, जिसकी वजह से ठीक नहीं हो रहा। रोजाना के हमें 5 लेक्चर जो है मस्ट लेना पड़ते हैं। तो अगर कोई टीचर छुट्टी पे चला जाता है ना, जैसे आजकल मैडम नसरीन छुट्टी पे गई हुई है, तो उनके लेक्चर भी हमें ही जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो हमें डेली के 6 लेक्चर लेने पड़ जाते हैं, सारी क्लासेस जो है बुला के, किसी के 2 किसी के 3। तो गला कैसे रेस्ट होगा, मेरा ठीक नहीं होगा ना। तो दुआ करें, आगे 3 छुट्टियां आ रही हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि उसमें कवर अप हो जाए। जी बेटा, मैं बात कर रही थी नेचुरल इम्यूनिटी की। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो माँ से बच्चे को जो कन्वर्ट होती है, तो जो प्लेसेंटा के थ्रू थ्रू ब्लड मिलता है फीटस को, जब माँ के पेट के अंदर होता है तो उसको फीटस कहते हैं। जैसे ही वो दुनिया में आ जाता है तो उसको बेबी कहते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी की इम्यूनिटी इसलिए स्ट्रॉन्ग होती है, नंबर 1 तो प्लेसेंटा के थ्रू उसको इम्यूनिटी अच्छी मिली है। अच्छा, इसकी भी बात यह है कि इम्यूनिटी उस बच्चे को अच्छी मिली होगी या मिलती है जिसकी माँ को डाइट अच्छी मिलती है, और जिसकी माँ जो है प्रेगनेंसी के दौरान और प्री प्रेगनेंसी, एक प्रेगनेंसी होता है, एक प्री प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होने वाली होती है ना, न्यूली मैरिड कपल, तो उसी वक्त से डाइट अच्छी कर देते हैं, ताकि क्योंकि उसने प्रेग्नेंट होना है तो उस वक्त डाइट, ये जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि जो एक तो मैं प्रेगनेंसी पे केयर पढ़ाती हूँ, उससे पहले प्री प्रेगनेंसी केयर। प्री प्रेगनेंसी केयर में हम इम्यूनिटी को और उन सारी जो कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो ऐसी डिजीजेज जो माँ से बच्चे को कन्वर्ट होनी होती है, उनसे पहले ही हम प्री प्रेगनेंसी केयर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो कवर अप होना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कवर अप होना मुश्किल क्यों होता है, जब मैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। तो यहाँ इतना ही काफी है इस लेक्चर के हवाले से, कि उस माँ से एंटीबॉडीज अच्छी फीटस को मिलेंगी या बेबी को जिस माँ ने अच्छी डाइट ली होगी, जिस माँ को कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होगी, जिस माँ को कोई और एनी अदर डिजीज नहीं होगी, और वो खुद हेल्दी होगी, तो हेल्दी बच्चा बोर्न करेगी और उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरी चीज जो है क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर, ठीक है। जो बच्चा माँ का, ये आप लोगों ने बात सुनी होगी कि पैदा होते ही बच्चा जो है उसको माँ के एब्डोमेन पे डाल दे और फीडिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है। यहाँ क्या होता है, माएँ कह देती हैं जी 3 दिन तक दूध नहीं आ रहा। दूध आ जाता होता है जब बच्चा सक करता है, तो माँ के हॉर्मोन्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं और जो मिल्क प्रोड्यूस करा देते हैं। मिल्क की प्रोडक्शन तो हो चुकी होती है, लेकिन मिल्क जो है वो बच्चे तक पहुंच जाता है, ठीक है। मिल्क की प्रोडक्शन तो तब से स्टार्ट हो जाती है जब वो प्रेग्नेंट हुई थी। तो क्लोस्ट्रम को वेस्ट कर देते हैं लोग। इस क्लोस्ट्रम में
एंटी बॉडीज होती हैं। जब प्लेसेंटा बच्चे को कन्वर्ट करता है ना एंटीबॉडीज, तो वो उसी तरह माँ के जो है वो ब्रेस्ट की तरफ जो मिल्क प्रोडक्शन होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो ये कोलोस्ट्रम जब होता है तो ये येलोश कलर का थिक जो है मिल्क होता है, तो माएँ उसको जो है पुश करके तो वो निकाल देती हैं, कह देती हैं ये गंदा दूध है। ये गंदा दूध नहीं होता, इस कोलोस्ट्रम के अंदर एंटीबॉडीज होती है। जो बच्चा माँ का कोलोस्ट्रम और हेल्दी मदर से इम्यूनिटी लेके आता है, उसमें वो बहुत सारी डिजीजेज जो है कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हम इसमें पढ़ेंगे, या दूसरी डिजीजेज जो ईपीआई प्रोग्राम के अंदर एंटर की गई है, वो सारी डिजीजेज से बच्चे को रिस्क फैक्टर जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है दी इनेट इम्यून सिस्टम ऑल्सो नोन एज द नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम और इनबॉर्न इम्यूनिटी सिस्टम। अब इसको इनेट सिस्टम इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये इनबॉर्न इम्यूनिटी सिस्टम है। इसमें रेजिस्टेंस ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टू इन्वेसिव बाय द ऑर्गेनिजम्स। जो हमारी फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी वो हमारी स्किन है, स्किन के बाद म्यूकस मेम्ब्रेन, और ठीक है जो इन्वेजन होती है तो ऑर्गेनिजम्स अंदर एंटर होते हैं। जब तक हमारी स्किन जो है उसमें जो है कोई कट नहीं लगता, तो तब तक जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर एंटर नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हो जाए या फिर वो उन रास्तों से जाता है जैसे नोज और आईज और थ्रोट, ठीक है, माउथ नोज थ्रोट कह ले और आईज, जहाँ पे उनको रास्ता मिलता है अंदर जाने का, तो उनमें अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया है। नंबर 1 म्यूकस मेम्ब्रेन, और नोज में अगर जाए तो सीलिया। ये सारी क्या है हमारी रेजिस्टेंट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फिर फेगोसाइटोसिस बाय डब्ल्यूबीसी, ये भी तब होता है जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, तो फेगोसाइटोसिस सिस्टम भी डब्ल्यूबीसी जब नॉर्मल होते हैं या हेल्दी होते हैं तो वो फेगोसाइटोसिस का काम देते हैं। एसिड इन स्टमक सिक्रीशन डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिज्म टेकन इट। और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि अगर किसी तरीके से मुंह के जरिए आगे स्टमक तक चले जाए तो स्टमक के एसिड जो है उस माइक्रो और ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेजोजाइम्स एंड नेचुरल किलर सेल इन द ब्लड, और इसी तरह जो है लेजोजाइम्स एंड नेचुरल किलर सेल जो है ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, और वहां से भी निकल के अगर ब्लड तक कोई ऑर्गेनिज्म चला जाता है तो उसको जो है फेगोसाइट कर देते हैं हमारे इम्यून सिस्टम। ठीक हो गया। आगे है acquired immunity obtained either from the development of the antibodies in the response to exposure to the antigen। ये क्या है कि डेवलपमेंट इसमें अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है डेवलपमेंट ऑफ द एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू एक्सपायर टू द एंटीजन। अब एंटीजन का एक्सपायर होने से ये जो है अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है एज फ्रॉम वैक्सीन और अटैक ऑफ द एन इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें या तो हम वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर किसी कोई डिजीज हुई है तो उस डिजीज से जो है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई, अंदर एंटीबॉडीज हो गई है। जिस तरह अभी कोरोना वायरस जिनको होता है तो उनकी जो है एंटीबॉडीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, बिल्ड हो जाती हैं, तो उनको रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं। ठीक हो गया। लेकिन आपकी मैडम रुबीना को तो कोरोना पॉजिटिव था तो उसकी एंटीबॉडी बन गई, लेकिन फिर से मुझे फ्लू हुआ पड़ा है। हालांकि मैंने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखा। मैंने आपको बताया था ना कि जो ईद उल फितर थी, ईद उल फितर, तो उसके 1 वीक के बाद ये आउटब्रेक जो था कोरोना का वो तकरीबन पूरे घर वालों को कैसे हुआ, तो उसमें हम लोग बड़े खुश थे कि हमारी जो है एंटीबॉडीज बन गई, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया। बट मुझे फिर से जो है फ्लू 1 वीक हो गया, इतना ज्यादा हुआ हुआ। बट अभी कोरोना नहीं है, अच्छा ये ना समझना। तो उसके क्योंकि उसके साइन सिम्टम नहीं है, जस्ट फ्लू है, और मुझे जो है
थ्रोट कह लें या वॉइस रेस्ट नहीं मिल रही। तो इसमें जो है इन्फेक्शियस डिजीज जब होती है और फ्रॉम द ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडीज एज फ्रॉम द मदर टू फीटस थ्रू द प्लेसेंटा और द इंजेक्शन ऑफ एंटी सीरम अक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी फॉलोइंग टाइप। अब या तो फिर एंटीबॉडीज के लिए एंटीबॉडीज बनती हैं क्लिनिकली, अगर कोई जो है इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबॉडीज बन गई, जिसकी एग्जांपल मैंने कोरोना वायरस। दूसरी एंटीबॉडीज बच्चा जो है फीटस वो अपनी मदर से प्लेसेंटा के थ्रू लेके आता है। और तीसरी चीज जो है, अगर वो डिवेल्प माँ से नहीं हुई या फिर किसी बड़े को कोई डिजीज हो गई तो उसकी एंटीबॉडीज के लिए एंटी सीरम जैसे हीमोग्लोबिन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है बॉडी में, जिसको इन्फेक्शन होता है। acquired immunity may be falling active immunity natural by disease or clinical infection, for example chicken pox, measles, or subclinical infection, for example polio or diphtheria। इसको जो है क्लिनिकल इम्यूनिटी के नेम से भी कहा जाता है कि अगर ये क्लिनिकली इंट्रोड्यूस हो गई है कोई चिकन पॉक्स या मीजल जिसको हो गया उसको दोबारा नहीं होती। और दूसरी चीज आर्टिफिशियल बाय किल्ड बाय लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन जो हम जो है वैक्सीनेट करवाते हैं। जी, अफरा से आप फातिमा और ये मुदिम्मा तो होती। बेटा अफरा और फातिमा आप मेरे जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं ट्रॉपिकल डिजीजेज उसके लेक्चर में नहीं होते हो बेटा आप। आप फील ना करना कि मैडम हमारे नेम कॉल कर रही है। कुछ हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट कह लें, कुछ कह लें कि जो अ, पसंदीदा स्टूडेंट कह लें या जो टॉपर स्टूडेंट कह लें, उनको हर टीचर जो है नज़र में रखता है। ठीक है, तो आप लोग जब मेरे लेक्चर में नहीं होते हैं फराज शाब और फातिमा तो मैं हर्ट होती हूँ। मैं कल बाय नेम कॉल करने लगी थी कि बेटा आप लोग मेरे लेक्चर में नहीं हो, लेकिन मैंने नहीं किया। तो आई नो कि अगर आप मेरे लेक्चर नहीं भी लोगे कम्युनिकेबल डिजीजेस के तो वो टू इजी लग रहा है, आप कर पाओगे उसको। बट आप लोगों का प्रेजेंट होना जो है वो टीचर को भी एक्टिवेट रखता है और दूसरी आपकी जो प्रेजेंट है वो भी तो जरूरी है ना लेक्चर्स में। ठीक है, थैंक यू, आपने माइंड नहीं करना मेरी बात को। तो आज आपके नेम्स देख के मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग प्रेजेंट हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें जो है आर्टिफिशियल बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंटी बॉडी ह्यूमन और एनिमल कंटेनिंग जो है प्रिपरेशन और इंक्लूड ऑफ इम्यून ब्लड और सीरम। ये चीज़ मैंने बता दी है कि आर्टिफिशियल जो नेचुरल होती है वो नेचुरल या तो एंटीबॉडीज जो है जब कोई एंटीजन इंक्लूड कोई डिजीज होती है जिसमें डिजीज के नेम आपको बता दिए तो जिसमें और वो जो है उनकी एंटीबॉडीज बन जाती है। ठीक है, जब या फिर वो प्लेसेंटा से लेके आती है या फिर तीसरी चीज जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है या सीरम वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें एक चीज उन्होंने बताई है कि एंटीबॉडीज जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटीबॉडी ह्यूमन और एनिमल्स। अब एंटीबॉडीज जो है वो ह्यूमन या एनिमल से बनती है कंटेनिंग प्रिपरेशन inoculation of immune blood serum ब्लड और सीरम फ्रॉम कन्वलसेंट फॉर आईजी। आईजी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन है एंड एंटी सीरा बोथ आर जो है एंटीबॉडीज बट आईजी इज टेकन फ्रॉम द ह्यूमन एंड एंटी सीरम या एंटी सीरा इज टेकन फ्रॉम द एनिमल्स। ये दो चीजें, बाकी चीजें आपको पता था तो मे भी आपको ये भी चीजें पता हो कि जो एंटीबॉडीज है एक एंटी सीरम है जो एनिमल से बनती है और जो है ह्यूमन ग्लोबुलिन ये ह्यूमन से बनती है। पहले जब हम आपकी तरह स्टूडेंट थे ना या हम स्टाफ नर्सेस थे तो जब लेबर रूम में हम ड्यूटी करते तो प्लेसेंटास जो है उनको कलेक्ट किया जाता और जब जिस नर्स की ड्यूटी होती थी उसकी ड्यूटी में जितनी डिलीवरीज होती थी वो काउंट करके रजिस्टर से देख के उतने प्लेसेंटास जो है वो हैंड ओवर करके जाती थी अपनी ड्यूटी के। ठीक है,
جو जब ओवर में नर्स देती है ना बाकी चीजें और काम, तो वो प्लेसेंटास, क्योंकि उससे जो है एंटीबॉडीज बनवाते थे, तो अब आजकल कलेक्ट नहीं करते, तो वो पता नहीं प्लेसेंटास कहाँ से लेते। ठीक हो गया। जी, मैं फ़ातिमा का मैसेज पढ़ रही थी। जी फ़ातिमा, ओके, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इंटरनेट और लोड शेडिंग के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। बट आप ना, अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हों तो आप मैसेज करवा दिया करें। आप अगर डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकती ना बेटा, तो आप मुझे मेरे मोबाइल फ़ोन पे सिंपल मैसेज जो है वो कर दिया करें, या फिर कायनात या GRCR को बता दिया करें कि फ़ातिमा या जो भी स्टूडेंट है उसको ये वाला इश्यू है। ये वाला इश्यू डेली डेली तो नहीं होता, जब भी कभी इश्यू हो तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों की तरफ से हर्ट ना हूँ। ठीक हो गया। अब जो भी पैसिव कम्युनिटी, ये बात हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वही चीजें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है उसी की स्लाइड दिखाई हुई है। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया वो ये वही चीज है कि इम्यूनिटी जो है, इसको इनेट जो है, इनबॉर्न इम्यूनिटी या जेनेटिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनबॉर्न बच्चा लेके आता है, और इसमें इम्यूनिटी में अक्वायर्ड में एक्टिव और पैसिव दोनों तो होती हैं। अब एक्वायर्ड में अगर एक्टिव लें, तो एक्टिव वो जिनको हम जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं आर्टिफिशियल, जैसे बेबी बॉर्न हुआ तो उसको हम इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी के इंजेक्शन लगवाना शुरू करवा देते हैं उसके कार्ड एट बर्थ से ही। ठीक है, वो सारे आगे मेरे लेक्चर के अंदर मौजूद है। और नेचुरल वो जो लेके आया, जिस तरह जा तो वो मदर से लेके आया, इनेट में वो लेके आया, और यहाँ जो है एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट, अगर कोई डिजीज हो गई है तो उसकी एंटीबॉडीज दोबारा बन गई। और दूसरी अकॉर्ड में पैसिव इम्यूनिटी जो है, रेडीमेड जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ाया वही नेचुरल, जो इसमें जो है पैसिव में नेचुरल अगर है तो मैटरनल एंटीबॉडीज, और दूसरी जो है आर्टिफिशियल में हम एंटीबॉडीज उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, जैसे मैंने बताया कि सीरम और एंटी सीरम और ह्यूमन ग्लोबुलिन जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे बॉडी के अंदर। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट जो है अक्वायर्ड इम्यूनिटी में नेचुरल, अक्वायर्ड और आर्टिफिशियल, वही चीज़ें, ये स्लाइड मैंने वैसे ही आपको मोर क्लियर करने के लिए, ये भी वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई, फिर मैंने आपको जो है पिक्चर डिस्क्रिप्शन की, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं बेटा। ये इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है वो मैंने नवीद आलम की बुक के अंदर से निकाल के एज इट इज़ वो कह लें कि टाइप की हुई है। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि एक दो दफ़ा पेपर के अंदर ये चीज़ें आई, तो मैं परेशान हो गई कि ये चीज़ें जो है उसके साथ रिलेट नहीं कर रही थी, कि एंटीजीन और जो है हेप्टीन और एंटीबॉडीज जो है ये बच्चों को पढ़ाया हुआ है, इनकी डेफिनेशन क्यों आ गई। तो जब मैंने फिर नवीद आलम की बुक को रीड किया तो उसके अंदर ये चीज़ें अलग अलग डेफिनेशन लिखी थी, तो उनको मैंने अपनी स्लाइड में डाल दिया। तो मैं क्या करती हूँ, हर साल, मैं नहीं हूँ, सारे टीचर्स ही ऐसे करते होंगे कि हम हर साल जो हमारी स्लाइड बनी होती है उसको थोड़ा मॉडिफाई ज़रूर करते हैं, क्योंकि जो जब पेपर आते हैं तो इन पेपर्स को हम फौरन देखते हैं कि इस दफ़ा पेपर में क्या आया, जो चीज़ एक्स्ट्रा आई होती है उसको हम अपने जो है स्लाइड्स में डाल देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम बच्चों के लिए आसानी रहे, क्योंकि हम जो है अपने कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहे होते हैं, तो जो चीज़ एक्स्ट्रा आती है वो हम एक्स्ट्रा अपनी स्लाइड के अंदर डाल देते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको एज इट इज नवीद आलम की बुक के इस यूनिट इम्यूनिटी वाले में मिल जाएगी। एंटी जीन आर टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच introduce an immune response in the body, especially the production of antibodies। अच्छा, मैंने टाइम देखा ही नहीं, 45 मिनट हो गया। हम इम्पोर्टेंट टर्म से दोबारा पढ़ेंगे। मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ, क्योंकि हमें ये ऑफिशियली जो है
15 मिनट जो है अटेंडेंस के मस्ट ये है कि आप लोगों ने अटेंडेंस जो है हर पीरियड में लेनी है। तो अभी मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है सेशन शुरू होगा। नेक्स्ट सेशन भी जो है अटेंडेंस लेने के बाद मैं आप लोगों को 10 मिनट दूंगी कि आप लोग रेस्ट कर लो, मैं भी वॉइस रेस्ट कर लूँगी 10 मिनट, ठीक हो गया। बेटा मैं ऑनलाइन हूँ, मैं सिर्फ अटेंडेंस ले रही हूँ, इसलिए मैं बोलना बंद हो रही हूँ।
यहाँ पे मिल गई।
जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर वापस स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो लेक्चर में मैं आप लोगों को बता रही थी कि एंटीजीन जो है वो टॉक्सिन है जो फॉरेन सब्सटेंस इंट्रोड्यूस कराते हैं इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स को बॉडी के अंदर, ठीक है। और स्पेशली प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट एंड जो है न्यूक्लिक एसिड के मीन के एंटीजीन जो इंट्रोड्यूस कराई जाती है फॉरेन सब्सटेंस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एंटीजीन एंड हेप्टीन, a small molecule which when combined with a larger carrier such as protein। अब हेप्टेन क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल है। जब वो कंबाइन होता है लार्जर कैरियर प्रोटीन के साथ, एक प्रोटीन के साथ, कैन इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये क्या करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है विच बाइंड स्पेसिफिकली इन दी फ्री और कंबाइंड स्टेट। तो ये एंटीबॉडीज जो है वो बना देता है। फिर एंटीबॉडीज खुद क्या है? एंटीबॉडीज जो है जो एप्टीन है वो मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होता है इसके साथ, प्रोटीन के साथ, ठीक है। लार्जर करियर तो प्रोटीन के साथ और जब प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, इस प्रोसेस को एप्टीन बोलते हैं। और एंटीबॉडीज जो एंटीबॉडीज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, वो एक इम्यूनोग्लोबुलिन है। आईजी इज अ लार्ज बाइशेप प्रोटीन प्रोड्यूस मेनली बाय प्लाज्मा सेल। और ये कहाँ प्रोड्यूस होती है? प्लाज्मा सेल में, दैट इज यूज बाय द इम्यून सिस्टम टू न्यूट्रलाइज पैथोजन। और ये इम्यून सिस्टम में पैथोजन को न्यूट्रलाइज करती है एंटीबॉडीज such as bacteria and viruses, both दोनों को ही। the antibody recognize a unique molecule of the harmful agent called antigen। और ये क्या है? इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनिक मॉलिक्यूल है ऑफ द हार्मफुल एजेंट, ठीक है। हार्मफुल है एजेंट के लिए कॉल्ड एंटीजन, जिसको हम एंटीजन के नाम से कहा जाता है, जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। वैक्सीन एंड antigenic substance prepared from the causative agent of a disease or synthetic substance used to provide immunity against one or several diseases। वैक्सीन क्या है? जो प्रिपेयर करते हैं हम, ठीक है। वैक्सीन क्या है? जो एंटीजन सब्सटेंस जिसको प्रिपेयर किया जाता है डिजीजेस के अगेंस्ट, ठीक हो गया। जो हम जैसे टीबी, डिप्थीरिया, टेटनस और रुबेला वगैरह की जो लगाते हैं वैक्सीन, जैसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है, पहले 6 डिजीजेस के अगेंस्ट थी, अब 9 डिजीजेस के अगेंस्ट, ठीक है। डिप्थीरिया, टेटनस, pertussis एक्स्ट्रा, तो दैट इज कॉल्ड वैक्सीन। अब वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट विद अ वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। वैक्सीन जो एक एम्प्यूल है जिसके अंदर जो है वैक्सीन है, ठीक है, सब्सटेंस है, और उसको जो है वैक्सीनेट जैसे एंटीजन डिजीज ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जो उसके साथ जो ट्रीट करना है डिजीज को, जिसको लगाना है, दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीन को लगा के जो डिजीज को खत्म करना, दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, ठीक है। तो ये इंजेक्शन लगा दिया, वैक्सीनेशन करवा दी, जी हाँ करवा दी, तो दैट इज कॉल्ड वैक्सीन इज एम्प्यूर, जिसके अंदर सब्सटेंस है और उसको इंट्रोड्यूस करवा देता है, हमने कहा वैक्सीनेशन। Immunization, it is active and passive immunity both, and this vaccine and immunoglobulin both are given diseases, for example, rabies, anti-rabies vaccine or rabies
एंटी रेबीज वैक्सीन या फिर रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनाइजेशन क्या है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो दी जाती है। तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एंटी रेबीज वैक्सीन उसको कह सकते हो या रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबुलिन। ठीक हो गया। अब जो है दी इन्फेंट हु had born a mother having hepatitis B, a doctor medical student who is sick from hepatitis B, patient और tetanus patient। ये बताया हुआ कि ये इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको जो लगाई जाती है, ठीक है, इम्यूनाइज किया जाता है। अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसकी माँ को हेपाटाइटिस बी की जो हेपेटाइटिस बी के साथ ही बॉर्न होगा। इसी तरह डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट्स जिसको जो है प्रिक हुआ हेपेटाइटिस बी का और उसको हेपेटाइटिस हो गया या पेशेंट को टेटनस या पेशेंट जो है टेटनस, इस तरह की जो है उनको दी जाती है, इम्यूनाइजेशन कराई जाती है। ठीक है। आगे inoculation the action or process or an instance of oculation, especially the introduction of pathogen or antigen into the living organism to stimulate the production of antibodies। अब ये जो इंट्रोड्यूस की जाती है, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजन और एंटीजन, एंटीजन जो जब इंट्रोड्यूस की जाती है बॉडी को, उसका और पैथोजन जो अंदर पड़ा हो उनका आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा होता है, इंट्रोडक्शन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, इसलिए कि एंटीबॉडीज बनाने के लिए दिस प्रोसेस जो है इस पीरियड को बोलते हैं। जी बेटा, कोई बच्चे प्रेजेंट भी है, कोई भी मेरी यस नो का आवाज तो बताओ ना कि मेरी आवाज आ रही है। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं तकरीबन 20 मिनट से पढ़ा रही हूँ, आप लोग बोल ही नहीं रहे। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बच्चों मेरी आर यू प्रेजेंट? आर यू लिसन मी स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आर यू लिसन मी? जी बेटा आप मुझे जो है लिसन कर रहे हो? स्टूडेंट्स आर यू लिसन मी? जी बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? स्टूडेंट्स जी मैं 10 मिनट से बोल रही हूँ, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मेरी आवाज आ रही है? जी मैं 10 मिनट से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ लेकिन आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मेरी आवाज नहीं आ रही। ओके थैंक यू। तो आप लोगों ने जो मैंने स्लाइड्स तो पढ़ा चुकी हूँ वो आप लोगों ने सुनी है? ये जो वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, ये आप लोगों को ने लिसन की है? आप लोगों को इसकी समझ आ गई? मैंने ये पूरी स्लाइड पढ़ा दी है। मैम आवाज ठीक है। यस मैम, थैंक यू सो मच। तो आगे इनओकुलेशन मैंने बता दिया कि इनओकुलेशन दैट इज द पीरियड जब हम कोई वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराते हैं और उस एंटीजन और पैथोजन का इंटरेक्शन होता है एंटीबॉडीज बनने के लिए, और उस प्रोसेस को जो है इनओकुलेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। जब बेटा आपका रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं एकदम मैंने देखा 10-15 मिनट हो गया मुझे पढ़ाते हुए तो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हुई कि मेरे स्टूडेंट सो तो नहीं रहे। कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। अब हर्ड इम्यूनिटी मैंने जो बताया था ना कि हाँ, चलिए स्लाइड रीड करके भी आप लोगों को बता देती हूँ कि व्हेन अ क्रिटिकल प्रोटीन ऑफ कम्युनिटी इज इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट contagious disease, most member of the community are protected against the diseases
because there is little opportunity for an outbreak. कुछ कम्युनिटी ऐसे होती है कि वहाँ आउटब्रेक का लिटल जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है, और वहाँ पे जो है कंटेजियस डिजीजेस जो है होती है उसके अगेंस्ट लोग जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर एन अदर ब्रेक even those who are not eligible for certain vaccine, ठीक है। क्या जाते हैं आ रहा है। तो मेरी आवाज तो सबको बेटा आ रही है ना, मेरी आवाज सबको आ रही है। मे भी कोई एक आध स्टूडेंट है जिसके लिए कोई कनेक्टिव इशू हो, बट बाकी सारे स्टूडेंट्स का कायनात नवाज मैसेज ओके में आ रहा, ठीक है। ठीक है, साइमा अरशाद गिल मैम सारी स्लाइड्स समझी है, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। तो सच एज इन्फेंट फ्रॉम द, अच्छा ये मैं आपको बता रही थी कि जो है हार्ड इम्यूनिटी क्या है इसमें। इवन दोज हु आर नॉट एलिजिबल फॉर सर्टेन वैक्सीन सच एज इन्फेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन, कुछ इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लोग यही जहाँ कहीं के आउटब्रेक ऑफ द डिजीजेस होना होता है, बट उस वहाँ की कम्युनिटी जो है वो जो है इम्यूनाइज्ड होती है, या उनका जो है इम्यूनिटी जो है वेरी प्रोटेक्टिव, और जो है अगेंस्ट दी डिजीजेस जो है उस पर कुव्वत मुदाफ़ वो रखती है। लेकिन कुछ लोग जैसे इन्फेंट्स कह लें या जो है प्रेग्नेंट वुमेन, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल गेट सम प्रोटेक्शन बिकॉज द स्प्रेड ऑफ द कंटेजियस डिजीजेस कंटेन, दिस इज नोन एज कम्युनिटी इम्यूनिटी। और वो उस कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ सारे लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इम्यून सिस्टम बहुत जो है स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ जो है चंद एक लोग ऐसे हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइक उन्होंने प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फेंट बताया। ये दो लोग ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। जैसी औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो डबल फंक्शन कर रही होती है, और कुछ ड्यू टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इस प्रेग्नेंट वुमेन की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और इन्फेंट की तो वो तो बेचारे होते ही इस पे। तो इस तरह के जो रिस्क पर्सन लोग होते हैं, इम्यूनो कंप्रोमाइज या हाँ इम्यूनो कंप्रोमाइज पीपल, या कह लें कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, वो उन लोगों के साथ रह रहे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी होती है, तो उनको रिस्क फैक्टर कम होते हैं। इसको कम्युनिटी इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो जब ये जो है बलूचिस्तान वाली साइड पे जब पोलियो के ड्रॉप्स नहीं थे तो उस वक्त वहाँ हर्ड इम्यूनिटी यूज की जाती थी। इसकी रेशो जो है 33% हर्ड इम्यूनिटी का रेट है। जिस तरह अगर हम कोई वैक्सीनेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस एंटीजीन को करते हैं तो उसका रेट हमें तो 100% नहीं तो 80-90% मस्ट मिलता है। बट कम्युनिटी इम्यूनिटी जो है हर्ड इम्यूनिटी, इसका जो है हमें रिजल्ट 33% मिलता है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी इम्यूनिटी अप्लाई टू कंट्रोल ऑफ अ वैरायटी ऑफ कंटेजियस diseases including influenza, measles, bumps, rotavirus, न्यूमोकोकल डिजीजेस। ये इस तरह की डिजीजेस के अगेंस्ट जो है ये इसका फायदा हो जाता है जहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले लोग मौजूद हों और चंद एक लोग जिनकी इम्यूनिटी मौजूद नहीं होती, ठीक है। इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग होते हैं, तो उनको उन लोगों से फायदा हो जाता है। इसको जो है कम्युनिटी इम्यूनिटी और हर्ड जो है हर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है, लेकिन इसका जो है रिजल्ट सिर्फ 33% है। जी, एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन जो है
ये डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि हम इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं तो इसमें एक्सटेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। EPI was started by WHO in 1974. EPI जो ग्लोबली प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वो 1974 में। The extended program immunization was launched in Pakistan July 1978 with the help of WHO and UNICEF to protect the children by immunizing against child। अच्छा, फिर पाकिस्तान में जो ग्लोबली जो लॉन्च हुआ वो 1974 में WHO का एक्सटेंडेड WHO की तरफ से स्टार्ट किया गया एक्सटेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन। बट पाकिस्तान में जो लॉन्च हुआ वो जून जुलाई 1978 में। अब ये किसकी हेल्प से? WHO और यूनिसेफ की हेल्प से। किस लिए? कि प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन बाय इम्यूनाइजिंग देम अगेंस्ट दी किन किन चीज़ों के अगेंस्ट? ट्यूबरक्लोसिस, पोलियोमाइलिटिस, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस एंड मीजल्स। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें जो थी 6 डिजीजेज जिनके अगेंस्ट जो है 1978 में ये लॉन्च हुआ, जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसकी हेल्प की और साथ में WHO और यूनिसेफ ने हेल्प की। तो ये जो है वो फ्री इम्यूनाइज किया जाने लगा बच्चों को भी विद सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड डेवलपमेंट जो है पार्टनर्स। द प्रोग्राम हैज एडेड हेपेटाइटिस बी एंड hemophilus influenza vaccine to its childhood immunization schedule in 2002। अब ये जो मैंने बताया आपको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डिजीजेज जो मैंने आपको बताई, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियोमाइलिटिस, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस एंड मीजल्स, ये 1978 में लॉन्च जब किया गया प्रोग्राम EPI का, तो उस वक्त सिर्फ 6 डिजीजेज थी। उसके बाद जो है पाकिस्तान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हेल्प से 2002 में जो है इसके अंदर हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा जो है, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा जो है टाइप बी, वो भी दोनों वैक्सीन जो है शामिल कर दी थी। अब जो हेपेटाइटिस बी को बी के नेम से बोला जाता है और हिब जो है इसके नाम से हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी को HIV हिब के नेम से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब वैक्सीन को हिब के नेम से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी टाइप बी वायरस, ये दो जो है इंक्लूड हो गया तो 6, 7, 8 डिजीजेस हो गई। ठीक हो गया। ये कब लॉन्च हुआ? 2002 में इंट्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी एंड वैक्सीन, ठीक है। सपोर्ट फ्रॉम द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, GAVI alliance, G for global, A for alliance, V for vaccine and A for alliance, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बेटा बता रही हूँ कि आपको इसके जो है MCQs जो है आपको इंस्टीट्यूशन या UHS किसी भी लेवल पे आ भी सकते हैं और आपको इसका जो है इंट्रोडक्शन भी EPI का कहा जा सकता है कि आप करवा दें, तो फिर आप लोग इंट्रोडक्शन जो है अच्छा लिखा होगा अगर आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा। तो फिर 2006 में क्या हुआ? टेट्रावेलेंट, ठीक है, टेट्रावेलेंट combination vaccine was introduced, replacing separate diphtheria, tetanus and pertussis and hepatitis B vaccine. This was later switched। अच्छा, अब टेट्रावेलेंट के नेम से जो है 2006 में कम्बिनेशन वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस कराई गई थी और रिप्लेसिंग सेपरेट डिप्थीरिया और टेटनस एंड परtussis। अब ये जो वैक्सीन दी जाती थी ना, इसमें DPT3 के नेम से थी। DPT3 में 3 चीजें आती थी, डिप्थीरिया, टेटनस एंड परtussis।
ये एक ही वाइल में जो है एंटीजीन होता था, जिसको एक ही सिरिंज में भर के स्टूडेंट कह दिया सॉरी, जो है इन्फ्लुएंस को लगा दिया जाता था। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो है ये इन 2006 इसमें टेट्रा कॉम्बिनेशन वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस। इसके बाद इसमें दो चीजें और डाल के इसको जो है हेपाटाइटिस बी वैक्सीन एंड इन्फ्लुएंजा इसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये तीनों की वाइल अलहदा थी और दूसरे दोनों अलहदा अलहदा वाइल्स थी। मेरी बात को समझ रहे हो ना आप, कि हेपाटाइटिस बी अलहदा इंजेक्शन लगता और इन्फ्लुएंजा का अलहदा लगता, और एक वाइल में जो है ये 3 इंजेक्शन लगते, डिप्थीरिया, टेटनस एंड pertussis. Is it clear beta? This was later switched in 2008. 2008 में इसको जो है स्विच ऑफ कर दिया गया टू पेंटावायलेंट DPT hepatitis B vaccine, that the addition of new Hib vaccine hemophilus influenza. अब जिसको डीपीटी के नेम से बोलते थे, अब उसको स्विच ऑफ करके उसका नेम चेंज कर दिया और उस नेम को जो है पेंटावेलेंट जो है इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, पहले जो है DPT-3 था, तो 2 इंजेक्शन चूंकि और ऐड कर दिए थे, तो इसलिए इसको पेंटा का नेम दे दिया। तो पेंटा में 5 पेंटावीन 5 इंजेक्शन जो है वो लगाए जाते थे। अब जो है अब डीपीटी को खत्म कर दिया, जो है पेंटावेलेंट, जो पेंटावेलेंट में जो है ये तीनों डिप्थीरिया, टेटनस, परटिसिस और हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है एडिशन ऑफ अ न्यू हिब वैक्सीन जो है इसमें डाल दिया गया। ठीक हो गया। अब ये चीज मैं आपको क्लियर करती चलूं कि इनकी वाइल्स अभी भी अलहदा है। ठीक है, हेपाटाइटिस बी अलहदा लगता है और इन्फ्लुएंजा जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वो अलहदा लगता है, और डिप्थीरिया, टेटनस, परटूसिस अलहदा लगता है। बट इसका नेम DPT-3 चेंज करके पेंटावेलेंट रख दिया ताकि लगाने वालों को ये पता हो कि 5 इंजेक्शन लगाने। ठीक हो गया। The program also planned to introduce rotavirus vaccine in 2013, which was prevent diarrhea due to rotavirus. अब जो मैंने बताया था कि 2002 में जो है वो दो चीजें हीमोफिलस और इन्फ्लुएंजा उसमें 6 डिजीजेस में ऐड किया था और हेपाटाइटिस बी, क्योंकि ये दो चीजें न्यू आ चुकी थी डिजीजेस, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ग्लोबली जो है डिस्कशन करके तो ये चीजें उस वक्त जो है इंट्रोड्यूस कराई गई। तो बट उसके बाद जो है फिर और डिजीजेस आ गई, जैसे रोटा वायरस जो है ये डायरियल डिजीज थी। अब डायरियल डिजीजेस इतनी कॉमन हो गई कि उस वक्त जो है डेथ रेट पाकिस्तान में बच्चों का जो था वो डायरिया की वजह से होता था। MCQs जो उस वक्त आते थे तो उसमें डेथ रेट जो है वो उस वक्त डायरिया का डेथ रेट जो है, काफ़ी डिजीजेस के ऑप्शन होते थे बट डायरिया की वजह से डेथ रेट ज़्यादा हुआ। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेचारी को क्या करना पड़ा, फिर से 2003 में उसने अपने इस प्रोग्राम में रोटा वायरस इंट्रोड्यूस किया, और रोटा वायरस जो है प्रिवेंट करता है डायरियल डिजीजेस को। ठीक हो गया। अब DPT डिप्थीरिया, टेटनस एंड pertussis stand for DPT, and HIV Hib stand for Haemophilus influenza type B, and pentavalent diphtheria, tetanus, pertussis, and hepatitis B and Hib, Haemophilus influenza B. तो आई डोंट नो कि आप लोगों को इस चीज़ का पहले पता है या आप लोगों को मैं ही ये बता रही हूँ। तो पहले आप लोगों को इन चीज़ों का पता है बेटा, ये सारी चीज़ें जो मैं इंट्रोड्यूस कराई। इम्यूनिटी का तो मुझे पता है कि आप लोगों को इम्यूनिटी और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आती है, लेकिन आपको DPT, हिब और पेंटावेलेंट इन चीज़ों का पता था कि नहीं पहले?
ऑनेस्टली मुझे यस नो में आंसर दें। पीसीवी निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, अब जो है पेंटावेलेंट के बाद जो है पीसीवी जो है निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन वो भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दी। रोटा वायरस वैक्सीन प्रिवेंट डायरिया एंड पीसीवी जो है निमोकोकल कंजुगेट नमूनिया को जो है वो कवर अप करती है पीसीवी। ठीक हो गया। थैंक यू। मुझे क्योंकि टीचर को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को पता है क्यों कौन सी नहीं। इम्यूनिटी के लिए तो मैंने जो है वो आपसे कह दिया था कि मुझे श्योरली पता है कि आप लोगों को इम्यूनिटी का पता है, बट मुझे ये पता था कि उनको जो है ईपीआई जो है एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन उसका नहीं पता होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या थे? जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ये ऑब्जेक्टिव जो ईपीआई वालों ने बनाए। The program aims is to reduce mortality and morbidity resulting from the 8 EPI targeted diseases by the immunizing children aged from 0 to 11 months and pregnant women। तो मैंने बताया कि ईपीआई जो के ऑब्जेक्टिव उस वक्त उन्होंने जो बनाए थे ग्लोबली, उसमें उन्होंने कहा था कि मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट जो है उसको रिड्यूस करना है। इनको 8 ईपीआई टारगेटेड डिजीजेस जो मैंने आप लोगों को अपने ईपीआई प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कराई। ठीक हो गया। अब लास्ट वन जो मैंने आपको पीसीवी जो है निमोकोकल के लिए इंट्रोड्यूस कराई, तो लास्ट वन उसका जिक्र किसी बुक में अभी आया लेकिन न्यू एडिशन अगर आएगा तो उसमें ज़रूर होगा। तो वो अब 9 जो है ईपीआई प्रोग्राम में जो है हमारे डिजीजेस हो गई हैं। चिल्ड्रन एज जिनकी एज जो है 0 से 11 मंथ एंड प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो, और प्रेग्नेंट वुमेन को भी जो है वैक्सीनेट किया जाता था। तो इसका दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव जो है मीन के मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए अगेंस्ट दी जो है कम्युनिकेबल डिजीजेज कह लें। The specific objective of the program are interruption of the polio virus by 2012, और दूसरी चीज़ जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इनके थे कि इंटरप्शन करनी है पोलियो वायरस को, क्योंकि पोलियो वायरस जो है वो बहुत स्प्रेड हो चुका था। ये 2012 में जब इसको ईपीआई प्रोग्राम में शामिल किया गया तो इसका मतलब था कि इंटरप्ट करना है, हमने उसकी इंटरप्शन करनी है। एलिमिनेशन ऑफ न्यू नेटल टेटनस बाय 2015 के 2012 तक जो है इंटरप्शन ऑफ द पोलियो वायरस करेंगे और 2015 तक जो है टेटनस को एलिमिनेट कर देंगे, जो माशाल्लाह जो है एलिमिनेट हो चुकी है। एलिमिनेशन ऑफ द मीजल्स बाय 2015 और एलिमिनेशन ऑफ द मीजल्स जो है 2015 तक हो जाएगी, और ये बिल्कुल हुई है। और जिनको कोई 1-2% रेट हो भी जाते हैं तो वो उन लोगों का फॉल्ट है जो इम्यूनाइजेशन नहीं करवाते या उसकी बूस्टर डोजेस नहीं डलवाते। रिडक्शन ऑफ द डायरिया, pertussis and childhood tuberculosis to the minimum level that there to be become a public health program, और इन चीज़ों को डिप्थेरिया, pertussis को और ट्यूबरक्लोसिस को मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल ऑफ द अदर डिजीजेस बाय introducing new vaccine in EPI as when they become available, और कंट्रोल ऑफ द अदर डिजीजेज जैसे दूसरी डिजीजेज जैसे आती जाती हैं और उनको हम अपने ईपीआई प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाते जाते हैं, जिसकी एग्जांपल अभी जो है एक दूसरी डिजीज हमारा जो कोरोना वायरस है उसकी वैक्सीन जो है बड़ी फास्टली जो है ग्लोबली उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। जैसे ही उसकी वैक्सीन आ गई तो उसको जो है ईपीआई प्रोग्राम में शामिल कर देंगे।
تو جیسے ہی نیو کوئی ڈیزیز آتی ہے اور اس کی ویکسین بنتی ہے تو اس کو EPI پروگرام میں شامل کر دیا جاتا ہے. بٹ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کیونکہ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہے نا، تو ڈیولپنگ کنٹری میں جو ہے وہ EPI پروگرام میں شامل کچھ چیزوں کو نہیں کیا جاتا، بٹ انٹروڈیوس لوگوں کو کروا دیا جاتا ہے نیشنل لیول پہ کہ یہ جو ہے امیونائزیشن بن گئی ہے تو اس کو لوگ پرچیز کروا کے خود سے لگواتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ 2002 پہ جو ہے وہ ہیپاٹائٹس بی اور انفلوئنزا بنی تھی، بٹ اس کو باقاعدہ طور پہ پاکستان کے پاس بجٹ نہیں تھا تو انہوں نے EPI پروگرام کے اندر اس کو تو ڈال دیا، بٹ لوگوں کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ اس کو گورنمنٹ لیول پہ جو ہے وہ فری انجیکشن نہیں لگیں گے. ٹھیک ہے، جو EPI پروگرام میں باقاعدہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ تو 2006 میں سٹارٹ ہوا. تو اس وقت میرے بچے جو ہے، میری بیٹی پیدا ہوئی تھی 2003 میں، تو میں نے خود سے ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ پرچیز کر کے اپنی بچی کو لگایا تھا. تو یہ اگزامپل میں اس لیے دے رہی ہوں کہ جیسے ابھی کورونا وائرس کی ویکسین آئے گی تو پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکے گا تو اس کو انٹروڈیوس کروا دے گا. تو جو لوگ افورڈیبل ہوں گے، گورنمنٹ آف پاکستان اگر افورڈ کی اس کے ساتھ NGOs نے ساتھ دیا تو دیٹس ویری گڈ، تو ہم سب کا ہی فائدہ ہو جائے گا. تو نہیں تو لوگ اس کو پرچیز کر کے لگوائیں گے. ٹھیک ہو گیا، جس طرح میں نے اپنی ہیپاٹائٹس بی کی جو ہے اگزامپل دی. تو یوزنگ EPI ایز spread of the promoting other primary health care activities. ٹھیک ہو گیا. جو ہے in integrating EPI into primary health care. ہاں، یہ جو اس کو پرائمری ہیلتھ کیئر ایکٹیویٹیز یا پرائمری ہیلتھ کیئر کا حصہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو پرائمری جو ہے لیول پہ ہم جو ہے پرائمری کیئر ہماری ہوتی ہے نا پرائمری لیول پہ، وہیں پہ EPI پروگرام جو ہے انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. جو قریبی سینٹرز ہوتے ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں، تو انہی میں جا کے یہ EPI پروگرام کے انجیکشن لگوائے جاتے ہیں، امیونائز کروایا جاتا ہے چلڈرن کو. تو ابھی 50 منٹ ہو گئے، یہاں سے ہم دوبارہ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو یہ EPI پروگرام ہمارا چل رہا ہے. اس جو ہے ہمارا EPI ٹیبل ہے، اس کو میں آپ لوگوں کو جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ اپنے لیکچر میں جو ہے لے کے چلوں گی، نیکسٹ جو ہے پریزنٹ کروں گی. تو ابھی میں آپ لوگوں کی اٹینڈنس لینے لگی ہوں کیونکہ میرے پاس اونلی 10 منٹ ہے آپ کی اٹینڈنس کے لیے. ٹھیک ہے، میں ابھی آن لائن ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، صرف اٹینڈنس لینے کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے میری وائس آپ تک نہیں پہنچ سکوں گی. جی، امارا کا نیم بار بار آ رہا، تو امارا میرے پہلے لیکچر میں پریزنٹ نہیں تھی. امارا you have not present in my first lecture.
अलिशबा शाकिर भी मेरे पहले पीरियड में नहीं थी। बायज़ आरिफ एब्सेंट है। कायनात नवाज मुझे बताओ कि बायज़ आरिफ एब्सेंट है आज। जी मारिया ताहिर, मैंने आपकी प्रेजेंट लगा दी है। जी मारिया, आपकी प्रेजेंट हो गई बेटा। जी मारिया।
جی اوکے، اللہ حافظ اسٹوڈینٹس، ٹیک کیئر.